following sentence are statement or not. First example, please give your pen. In this example, is it a statement? No, because this sentence is what? A kind of request. Please give your pen. So this is not statement. Why this is not statement? Because this is a request. First we will note down one note that if sentence, if, or we can write it as a interrogative a request, order, command, exclamatory, suggestion are not statement. If in our given sentence there is an interrogative or request or order, command, exclamatory, suggestion, these are not what consider as a statement. Statement में क्या होना चाहिए? उसकी वैल्यू either true होनी चाहिए या फिर false होनी चाहिए. Then and then we can say it as a statement. Now second example, how are you? Is it a statement? No, this is not a statement because यहाँ पे क्या है? This is a question, so it is not statement. Third example, sit down. It is what? A kind of order or command. So this is also not statement. If there is one another type of examples, if there is fourth example that 3x minus 9 is equals to 0. Is it a statement or not? First we find what is the value of x. If I put here x is equals to what? 3x is equals to 9, x is equals to what? 3. Okay. If this statement is true only for x is equals to 3. If I write here x is equals to 2, then what happen? This value 3x minus 9 is not equals to what? 0. Means what? This statement is not applied for every value of x. So this is not what? Not a statement. Why not statement? Because for every value of x, this equation does not satisfy. Another example we will take here is he is tall. He is tall. Now in this is a simple sentence, but if I here there is one boy, if I draw one another boy, then what happen? He is taller than this. If there is one another boy again, then what happen? This boy is again taller than this. Means this sentence is not applicable in every situation. So this is what? Not statement. This is not statement because in every condition this sentence is not what? Satisfied. Now one another example. Mathematics is an interesting subject.
Is mathematics is interesting subject? Yes, but not for everyone mathematics is an interesting subject. Some people like mathematics, some does not like mathematics. So in every condition or its truth value is what? Changes person by person. So it is not what? Statement. Okay? Means what? हम जब भी आपका स्टेटमेंट चूज करते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कंडीशन बाय कंडीशन, पर्सन बाय पर्सन, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. वो क्या होनी चाहिए? फॉर्म मीन्स रिमेन एज इट इज होनी चाहिए इन एवरी कंडीशन. Okay, we'll take some example for that. If I write here 6 into 4 is equals to what? 25. Is it true or false? False. This is a statement. But इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये किसी भी कंडीशन में ये एग्जाम्पल आपका चेंज नहीं होगा. 6 फॉर्म है, 4 फॉर्म है, 25 भी आपका नंबर है. यहाँ पे क्या है? पर 6 into 4 is not equals to what? 25. राइट. 6 into 4 is equals to what? 24. बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है? फॉल्स. मीन्स क्या आएगा आपका? एफ आएगा. ट्रूथ वैल्यू क्या है? दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ statement whose truth value is what? False. Means what? एवरीवन गेटिंग दिस? क्या है आपका कि 6 into 4 उसकी यहाँ पे चेंज नहीं होगा. क्या आप किसी भी कंडीशन में 6 into 4 यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इट रिमेन एज इट इज. यहाँ पे क्या हो रहा है? एज एक्स वैरीज उसकी वैल्यू भी कंडीशन से वैरी हो रही है. यहाँ पे क्या आता है आपका? ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. आई विल टेक वन अनदर एग्जाम्पल. इफ आई राइट हियर the quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equals to 0 has two real root. Is it true or false? Yes. If I solve this quadratic equation or any quadratic equation obviously has two roots. यहाँ पे क्या दिए हैं कि दोनों भी रूट क्या रहेंगे? रियल रहेंगे. 5x plus 6 is equals to 0. If I solve this, it has what? Two factor. Which are this factor? X square minus 2x minus 3x plus 6 is equals to 0. If you solve this, then what you get here? X minus 2 minus here 3. If I take x minus 2 is equals to 0. So you will get here x minus 2, x minus 3 is equals to 0. So what are the root of this equation? X minus 2 is equals to 0 and x minus 3 is equals to 0. X is equals to 2 and x is equals to 3. Both are what? Real. Means whatever given sentence they gives us what? Here this quadratic equation has two real root. ये condition कभी भी change नहीं होगी. इसके दो ही root आएंगे. वो कौन से रहेंगे? either 2 and 3. इसके अलावा इसके कौन से रूट आएंगे? क्या नहीं. यहाँ पे हमने सॉल्व किया है. कौन से दो रूट आते हैं? x is equals to 2 and x is equals to 3. So given statement is what? यहाँ पे फर्स्ट क्या है? ये आपका स्टेटमेंट है. ओके. गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी इसकी? t आएगी. ओके. Everyone getting this? Now ये आपका कौन सा हो गया?
सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अगर यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है आपका या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कंपाउंड स्टेटमेंट इज नथिंग बट व्हाट, वहाँ पे मोर देन 2 सेंटेंस आर एडेड बाय सम connectives. What are these connective? Compound statement. Next point is logical connectives. Normally when we add two sentences we use some connectives. Which are these connectives? Connectives कौन से हैं? We can connect two sentences by using and, or, if, then, if and only if not, all these are what? Connective. Which are the connective? And, or, if, then, if and only, if and what? If not. These are some connective. Now we will see compound statement. What are the compound statement? If two sentence if a statement is combination of two or more simple statement, then it is called compound statement. If a statement is a combination of two or more simple statement, then it is called a compound statement. Now we will take some example on this compound statement. Compound statement: 3 is a prime number. 3 is a prime number and 4 is even number. Now first of all, these two are what? Statement. 3 is a prime number. This is a statement. Its truth value क्या है इसकी? 3 is a prime number. Universal truth है 3 prime number है. Value of this sentence statement is what? True. 4 is a even number. ये भी क्या है आपका? statement है. इसकी truth value क्या आती है? 4 is a even number. Truth value of this statement is what? True. Now we connect these two statement by using the connective and. यहाँ पे क्या है आपका? 3 is a prime number and 4 is a even number. If I write here in terms of truth value, first sentence की truth value क्या है आपकी? T. and आपका यहाँ पे second जो है उसकी truth value क्या आती है आपकी? True आती है. Now for this and के लिए आपका जो कंजक्शन आता है उसे कैसे डिनोट किया जाता है? बाय दिस वे. वी विल सी इट लेटर ऑन. बट फर्स्ट यहाँ पे क्या है? जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, दिस बोथ आर व्हाट? स्टेटमेंट एंड इट कनेक्ट इट बाय व्हाट? एंड और बाय यूजिंग सम कनेक्टिव्स. नाउ देयर इज फर्स्ट टाइप
conjunction conjunction means what? Conjunction means what? In compound statement we use which connective? And. A compound statement formed by using the connective and. उसे क्या कहते हैं? Conjunction. If two statements are combined using the connective and, then it is called conjunction. कंजक्शन किसे कहते हैं? कि जब आपका कनेक्टिव कौन सा होगा? एंड. इट इज डिनोटेड बाय इफ, यहाँ पे इफ P and Q are two statements, then it is called a conjunction if it combined with and denoted by P conjunction Q and denoted by P conjunction Q. Conjunction is denoted by this symbol P conjunction Q. There is one truth table for this. Conjunction means if I write here one sentence that example 3 is prime and 4 is even number. These are what? 3 is a prime, this is a statement. 4 is a even number, this is again a statement. Now we denote here our first statement. First statement is what? 3 is prime number. Q क्या है आपका? Q क्या है? 4 is even. Both are what? Statement. First P क्या है? 3 is a prime number. True है कि false है? Obviously क्या है आपका? True है. Q क्या है? Q is a even number. ये भी क्या है? True है. यहाँ पे हमने किससे ज्वाइन किया है? दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट को ज्वाइन बाय यूजिंग कनेक्टिव एंड. सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? P conjunction Q. How we write it as a P conjunction Q. If we talk about the here truth value, first statement is true, second statement is true. और कंजक्शन की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका एक टेबल दिया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन. ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन यहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट P Q, P कंजक्शन Q. अगर आपका फर्स्ट लिखते वक्त T T F F
TF TF फर्स्ट, अगर आपके दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन P कंजक्शन Q इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉल्स. अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है आपकी यहाँ पे? फॉल्स. अगर आपका दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. यहाँ पे दिया होगा कि P3 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट इवन नंबर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर आपके दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? फॉल्स फॉल्स हो जाएंगे. तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी. P कंजक्शन Q का टेबल कैसा है फिर आपका? फर्स्ट, इफ यहाँ पे P एंड Q दिया है, P एंड Q मतलब क्या? एंड की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? कंजक्शन का ये सिंबल. यहाँ पे फॉर ट्रू ट्रू, TT के लिए वैल्यू इज ट्रू, फॉर रिमेन्स अदर के लिए वैल्यू क्या आती है आपकी? फॉल्स. TF F, FT F, FF F. फर्स्ट TT ट्रू, TF फॉल्स, FT फॉल्स, FF फॉल्स. Truth table for conjunction, I repeat, only for TT truth value is what? P conjunction Q is true. For remaining all the here value is what? False. TF के लिए false, FT के लिए false, FF के लिए क्या आती है? false. यहाँ पे अगर हमने यही स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? अलग तरीके से लिखते हैं. If I write here 3 is not prime and Q स्टेटमेंट है मेरा 4 is even. अभी क्या हो गया मेरा? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया. 3 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे नॉट दिया है मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? 4 इज अ इवन. यहाँ पे क्या हो गया आपका? सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया. अगर मुझे यहाँ पे इसका कंजक्शन फाइंड करना है, P कंजक्शन Q, सो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू? FT के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या आती है आपकी? F कंजक्शन T. क्या आती है यहाँ पे? F कंजक्शन T. ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई आपकी? फॉल्स आ गई. मतलब P कंजक्शन Q क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया. यहाँ पे क्या है? अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगी आपकी? P की वैल्यू क्या है? F. T की वैल्यू, सेकंड Q की वैल्यू क्या है? T. F कंजक्शन T क्या आता है आपका? फॉल्स. सो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स. सेम स्टेटमेंट को अगर हम अलग तरीके से लिखेंगे यहाँ पे कि 4 इज नॉट इवन, तो अभी क्या हो गया आपका? फर्स्ट 3 इज नॉट प्राइम एंड 4 इज नॉट इवन. सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया. अभी आपके क्या है? दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके? फॉल्स फॉल्स. मीन्स P कंजक्शन Q क्या हो गया आपका यहाँ पे? इज इक्वल्स टू F कंजक्शन F. F कंजक्शन F की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है आपकी? F. सो P कंजक्शन Q की वैल्यू क्या हो गई आपकी? F. दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वैल्यू ट्रू. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन F F T F. एंड अगर F F रहेगा देन ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? F. नाउ देयर इज अनदर टाइप. फर्स्ट जो हमने कंजक्शन देखा, कंजक्शन का स्टेटमेंट का कौन सा सिंबल है कि एंड रहेगा तो क्या है आपका? कंजक्शन. एंड रहेगा तो क्या है? कंजक्शन. नाउ वी विल सी सेकंड टाइप. सेकंड टाइप इज व्हाट? डिसजंक्शन. अभी डिसजंक्शन के लिए कौन सा रहेगा आपका कनेक्टिव? और. डिसजंक्शन के लिए इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग और, then this is called as a disjunction.
two statement are combined by using or, then it is called डिसजंक्शन। डिसजंक्शन के लिए कौन सा आता है आपका और यूज किया जाता है। हम चाहे तो फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, यही स्टेटमेंट कि 3 इज ए प्राइम नंबर और 5 इज ए, इसे भी यूज किया तो भी चलेगा। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अवर ट्रूथ टेबल। व्हाट इज द ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पी, सेकंड इज अ क्यू। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन इज डिनोटेड बाय, it is denoted by the symbol P disjunction Q। डिसजंक्शन का सिंबल क्या है आपका, जस्ट लाइक V। डिसजंक्शन कंजक्शन का जो रहता है, कंजक्शन इज लाइक दैट P कंजक्शन Q, उसी का रिवर्स सिंबल कैसे किसका रहता है आपका, डिसजंक्शन का। नाउ ट्रूथ टेबल P disjunction Q। ट्रूथ टेबल इज T T F F T F T F। यहाँ पे आपका क्या आएगा, फॉर फर्स्ट अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है देन T disjunction T इज व्हाट, T। T disjunction F is T, F disjunction T is T, and F disjunction F is what, false। फर्स्ट कंजक्शन में क्या आता है, टी टी ट्रू, बाकी सभी फॉल्स। उसका रिवर्स किस में रहता है आपका, डिसजंक्शन में रहता है। डिसजंक्शन में क्या होता है, एफ एफ फॉल्स, रिमेन्स आर ट्रू। अगर हम एग्जाम्पल ले तो कैसे आएगा आपका, सेम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर मैं रिपीट करती हूँ, वहाँ पे आपका कनेक्टिव खाली हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपको दिया है 3 इज प्राइम नंबर और 4 इज इवन नंबर। यहाँ पे अभी क्या चेंज हो गया आपका, कनेक्टिव चेंज हो गया। कनेक्टिव चेंज हो गया मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू भी आपके यहाँ पे कंजक्शन डिसजंक्शन की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट में एज अ पी कंसिडर करती हूँ, क्या है आपका 3 इज प्राइम नंबर। सेकंड क्या है आपका क्यू, क्यू क्या दिया है 4 इज इवन नंबर। दोनों को अगर मैं यहाँ पे एक साथ लिखूं तो यहाँ पे कैसे आएगा आपका, P और से कनेक्ट किया है तो कौन सा आएगा, डिसजंक्शन आएगा। P डिसजंक्शन Q के लिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 3 इज अ प्राइम नंबर, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है आपकी, ट्रू है। सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है उसका क्या है 4 इज इवन नंबर, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है आपकी, फॉर ट्रू है। भाई ट्रू ट्रू, टी कंजक्शन डिसजंक्शन टी के लिए क्या आती है उसकी ट्रूथ वैल्यू, टी डिसजंक्शन टी, ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, ट्रू। मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, टी डिसजंक्शन टी के लिए क्या है ट्रूथ वैल्यू, टी है। ओके सेकंड अगर इसी एग्जांपल्स को हम मॉडिफाई करें कि 3 इज
3 इज नॉट प्राइम नंबर। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट की आपकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 4 इज इवन नंबर, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ। सो इसके लिए आपका अभी क्या आ जाएगा, अगर मैंने नॉट लिखा तो फर्स्ट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ। सेकंड की ट्रूथ वैल्यू क्या है आपकी, टी। डिसजंक्शन एफ डिसजंक्शन टी इज व्हाट, टी। ओके, सेम इसमें अगर हम इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करें, यहाँ पे अगर मैं क्यूब में भी यहाँ पे नॉट लगा दूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी फर्स्ट एग्जांपल जो है, फर्स्ट पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है आपकी, फॉल्स है। क्यू की ट्रूथ वैल्यू 4 इज नॉट इवन नंबर, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। नाउ एफ डिसजंक्शन एफ क्या आएगा, एफ डिसजंक्शन एफ इज व्हाट, एफ। सो पी डिसजंक्शन क्यू की वैल्यू क्या हो गई अभी, क्यू इज व्हाट, एफ। यहाँ पे आपका जैसे स्टेटमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से उसकी क्या है, स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ट्रूथ वैल्यू जैसे चेंज होगी उसका डिसजंक्शन की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे क्या है आपका, एफ एफ के लिए फॉल्स है, रिमेनिंग सभी के लिए क्या है, ट्रू है। What we see in our this lecture, first is what is the statement. Statement means क्या रहता है आपका, कि statement is an declarative or assertive sentence whose truth value is what, either true or false. उसमें क्या नहीं होना चाहिए, your sentence not interrogative, exclamatory, order, exam, question, कमांड, और क्या नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी, ये सभी नहीं होना चाहिए। आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस जिसकी वैल्यू क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। वो क्या नहीं होना चाहिए, कंडीशन, कंडीशन बाय कंडीशन उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सम लॉजिकल कनेक्टिव्स वी यूज्ड व्हाइल वी टेक सम कंपाउंड स्टेटमेंट। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से हैं, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ नॉट। फॉर दिस लॉजिकल कनेक्टिव वी सी सम पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट, कंजक्शन। कंजक्शन कब हम कहते हैं, कंजक्शन में जब आपका एंड यूज किया जाता है इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट, वी कंबाइंड बाय यूजिंग एंड, देन उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कंजक्शन इज डिनोटेड बाय दिस। उसका ट्रूथ टेबल कैसे आता है आपका कंजक्शन का, पी क्यू, पी कंजक्शन क्यू। टी के लिए ट्रू रहता है, बाकी सभी के लिए वो क्या हो जाता है, फॉल्स।